Hello everyone, welcome back to the channel. In the previous video, we have discussed the two ways of defining a user defined function. One is your function with no argument and no return value, and another is function with argument but no return value. Now in this video we are going to discuss two more ways of defining a user function. One is function with argument and return value, and another is function with no argument but return value. But before discussing these two ways of defining a user defined function, we need to first understand that what we are supposed to call the values or the variable which we pass in a function call, and the values in the variable which we pass in a function definition. So the variables which are defined in the function call are called actual arguments, actual arguments, and the variables which are defined within the function definition. जो function definition के अंदर हम variable जो दो define कर रहे हैं, जो दो variable हम function definition के अंदर pass on कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं formal arguments, right? And हम इनको जो है another term we can use it as formal parameters, और यहाँ पे हम इसको जो है सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं, राइट? सो आपको जो है ये 1 मार्कर के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, दैट आइडेंटिफाई द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हमारे कौन से वेरिएबल्स होते हैं जो फंक्शन कॉल के अंदर यूज होते हैं, और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं जो हमारे फंक्शन डेफिनेशन के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइंड होते हैं, right? So we can say parameters are the values provided in the parenthesis when we write the function header. So function definition के parenthesis में जो हम variable pass on करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, parameters होते हैं, और जिसमें function definition में हम work करते हैं, right? An argument is a value that is passed to the function when it is called. So function call के अंदर जो है अगर हम variable use कर रहे हैं parenthesis के अंदर तो उनको हम क्या कहते हैं, arguments कहते हैं. In other word, arguments are the values provided in the function call. Parameter को हम the another name for the parameter is your formal argument, and the another name for the arguments is your actual argument. राइट? सो आई होप ये आपको दोनों टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी. सो लेट्स डिस्कस विद द फंक्शन विद parameter and the return value. So whenever we are returning any value from the function, we need to remember that function returns a value, and we can store those values which is returned by the return statement in three ways. Either we can store the value in some variable, or we can directly use the value in the print statement, or we can use the return value in some expression, right? And how we return the values from the function definition, we use the return keyword to return the value outside the function definition. That is, the keyword is your return keyword, right? Let's see it practically how we do this coding. Let's discuss the same example using विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप. सो इसके अंदर जो है हम आर्ग्यूमेंट्स भी ले रहे हैं. लेंथ और ब्रेड्थ हमने क्या करा है, फंक्शन कॉल के बाहर लेंथ और ब्रेड्थ हमने क्या किया है, फंक्शन डेफिनेशन के बाहर डिफाइन करा है, और इन दोनों की वैल्यू हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास ऑन कर रहे हैं फंक्शन कॉल में, और फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हम इसको एज अ पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं. ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो के अंदर कि अगर हमें आर्ग्यूमेंट के साथ काम करना है तो किस तरह से काम होगा ना. इसके अंदर हमें यह समझना है कि अगर हमें फंक्शन डेफिनेशन के बाहर वैल्यू एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे. लाइक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू तो प्रिंट हो जाएगी बिकॉज दीज आर डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन डेफिनेशन. पर जब हम एरिया को प्रिंट करेंगे फंक्शन डेफिनेशन के बाहर तो वो क्या एरर देता है, नेम एरर देता है, बिकॉज दिस एरिया वेरिएबल इज डिफाइंड विद इन द फंक्शन डेफिनेशन. व्हाट इफ कि मुझे एरिया की वैल्यू भी
फंक्शन डेफिनेशन के बाहर एक्सेस करना है, मुझे कैसे करूंगी? तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूँ तो ये तो मुझे एरर प्रोवाइड करेगा। तो उस केस में हमारे पास तीन तरीके हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। वन इज आइदर स्टोर इट इन अ वेरिएबल, जो भी हमारे एरिया की वैल्यू है, फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट जो है वैल्यू को रिटर्न करेगा और किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा, या डायरेक्टली हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर उसको डिस्प्ले कर दें या किसी एक्सप्रेशन में यूज करें एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर हम इस एक एक करके हम तीनों तरीके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वे इज, अगर हम चाहते हैं कि जो भी वैल्यू रिटर्न हो फंक्शन डेफिनेशन के बाहर, हम चाहते हैं वो वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो, सो दैट वी कैन यूज दैट वैल्यू वेन एवर वी रिक्वायर, राइट। सो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है अगर हमें प्रिंट करना है तो हम प्रिंट भी कर सकते हैं, और अगर हमें रिटर्न करना है तो हम यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज करेंगे। हमें कौन सी वैल्यू रिटर्न करनी है? एरिया की वैल्यू फंक्शन डेफिनेशन के बाहर रिटर्न करनी है। तो जब भी आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है, द फर्स्ट मेथड इज, हम क्या करेंगे, हम फंक्शन कॉल को जो है एक वेरिएबल के साथ डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने करा एक वेरिएबल डिफाइन करा है और उसकी उसकी वैल्यू हमने क्या यूज करी है? फंक्शन कॉल, राइट। इस केस में किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा? आपका फंक्शन हेडर रीड होगा, ठीक है, वैसे ही जंप कर जाएगा, कम बैक टू जंप टू द दिस स्टेटमेंट, लेंथ की वैल्यू रीड करेगा, ब्रेथ की वैल्यू रीड करेगा, राइट। जैसे ए वेरिएबल पे आया तो उसको क्या मिला? ए वेरिएबल के साथ फंक्शन कॉल में एल और बी की वैल्यू वो क्या करेगा? साथ में पास ऑन करेगा और फॉर्मल पैरामीटर जो एल और बी है उनको असाइन कर देगा। एरिया कैलकुलेट करेगा, एरिया प्रिंट करेगा, और जैसे ही एरिया प्रिंट करेगा उसको स्टेटमेंट क्या मिला? रिटर्न एरिया। जब भी रिटर्न फंक्शन यूज होगा, जब भी रिटर्न सॉरी नॉट द फंक्शन, वेन एवर वी यूज रिटर्न स्टेटमेंट, जब भी आपका रिटर्न स्टेटमेंट होगा तो आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कहाँ जाएगा? जहां पे फंक्शन कॉल हुआ था वहीं पे जाएगा। यूजुअली क्या होता है, आपका जो है फ्लो ऑफ कंट्रोल कहाँ जाता है? नेक्स्ट लाइन पे जाता है, जहां पे फंक्शन कॉल हुआ है उसकी इमीडिएट नेक्स्ट लाइन पे जाता है। रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो उस केस में हमारा जो फंक्शन जब हमारा फंक्शन डेफिनेशन खत्म होगा तो हमारा कंट्रोल जो है कर्सर का वो कहाँ जाएगा? जहां पे फंक्शन कॉल हुआ था। तो एरिया की वैल्यू जो है यहाँ पे रिटर्न होगी और किससे एसोसिएट होगी? किसको असाइन होगी? वेरिएबल ए को। अब हम फंक्शन डेफिनेशन के बाहर एरिया की वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं तो वो किस वेरिएबल के अंदर स्टोर है? ए वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो अब यहाँ जहाँ पे भी हम ए लिखेंगे वो बेसिकली हमारा क्या कर रहा है? एरिया की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस कोडिंग। वैल्यूज ले लेते हैं, लाइक 30, 40। अब देखोगे जो एरिया की वैल्यू 1200 हमने लिखा था, वही हमने जहाँ पे प्रिंट में ए दिया था तो उसकी वैल्यू भी 1200 ही आई है, एरर नहीं आया है। तो एक मेथड हमारा क्या हुआ कि अगर हम जो है रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं टू पास एनी वैल्यू आउटसाइड द फंक्शन डेफिनेशन, तो कर्सर आपका कहाँ जाएगा? आपका कर्सर जो है वापस फंक्शन कॉल के पास जाएगा जहां पे फंक्शन कॉल हुआ था, और उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट, फंक्शन कॉल को सब्स्टिट्यूट कर देगा आपकी जो वैल्यू रिटर्न हुई है उससे। तो यहाँ पे आपका फंक्शन कॉल एरिया से सब्स्टिट्यूट हो गया, विच मीन्स व्हाट कि एरिया की वैल्यू किसको असाइन हो गई? वेरिएबल ए को, राइट। तो अब जहां जहां पे भी वेरिएबल ए यूज करोगे वहां पे आपका एरिया की वैल्यू प्रिंट होगी। एक तो ये मेथड हो गया, ठीक है। सेकंड मेथड इज, हम डायरेक्ट ही फंक्शन कॉल को क्या करेंगे? प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? जब हम डायरेक्ट ही फंक्शन कॉल को प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर यूज कर रहे हैं तो कर्सर हमारा जो है रिटर्न, जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर होगा कर्सर हमारा वापस कहाँ पर आ जाएगा? फंक्शन कॉल के पास आएगा। फंक्शन कॉल को जो है सब्स्टिट्यूट कर देगा विद द वैल्यू एरिया। तो प्रिंट के अंदर हमारा एरिया आ गया तो ये क्या करेगा? वहां पे प्रिंट
उसको एरिया को डिस्प्ले कर देगा। सो लेट्स सी द सेकंड वे कि अगर हम प्रिंट के फंक्शन के अंदर जो है फंक्शन कॉल डायरेक्टली यूज कर रहे हैं तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, उसको वैल्यू को वहां पे रिटर्न करता है और डिस्प्ले कर देता है स्क्रीन पे, दैट इज प्रिंट कर देता है। सो लेट्स सी द एग्जांपल। यहाँ पे हम वापस सेम ले लेते हैं। आप देखोगे यहाँ पे अब जो है हमने प्रिंट स्टेटमेंट पहले यूज किया था तो 1200 पहले आ गया, देन एल और बी की वैल्यू आ रही है। सो दिस वाज द सेकंड मेथड। थर्ड मेथड क्या हो सकता है कि अगर हमें किसी एक्सप्रेशन के अंदर जो है वैल्यू को रीड करना है, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे पैरामीटर्स चाहिए, ठीक है, और मैं सपोज ये कर लेती हूँ कि लेंथ और ब्रेड्थ मेरे फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ही डिफाइन है। सो ये किस तरह का एग्जाम्पल हो गया, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न टाइप। ठीक है, हम फोर्थ टाइप का यूजर डिफाइंड फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे जो है हमें रिटर्न करना है, लेकिन रिटर्न मुझे एरिया की वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है, मुझे लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू एक्सेस करनी है आउटसाइड द फंक्शन डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि मुझे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जब हमें एक से ज्यादा वैल्यू को रिटर्न करना होता है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कॉमा से वैल्यू को सेपरेट करेंगे। जब रिटर्न, अब इस स्टेटमेंट को प्लीज ध्यान से सुनिएगा बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम रिटर्न स्टेटमेंट के साथ मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करते हैं तो वो किस टाइप में रिटर्न होता है, द वैल्यू इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ टपल। दैट मीन्स जो वैल्यू पैक होगी वो किस फॉर्म में पैक होगी, टपल के फॉर्म में पैक होगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज हम रिटर्न कर रहे हैं, तो हमें क्या कर, अगर हम यहाँ पे एक ही वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो एल और बी जो है दोनों वेरिएबल ए को जो है असाइन होगा इन द फॉर्म ऑफ टपल। आई जस्ट लेट मी शो यू कि किस तरह से ए की वैल्यू प्रिंट होगी। अभी हम यहाँ पे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको ये शो कर रही हूँ कि ए के अंदर जो हमारी लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू रिटर्न होगी वो किस फॉर्म में होगी, इन द फॉर्म ऑफ टपल। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। हमने पास ऑन किया, लेंथ की वैल्यू 30, ब्रेड्थ की वैल्यू 40। आप देखोगे लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू जो है हमारे फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल है बट इन द फॉर्म ऑफ टपल। क्यों? क्योंकि जब भी हम वैल्यू पास ऑन करते हैं फंक्शन डेफिनेशन के बाहर मल्टीपल वैल्यूज को पास ऑन कर रहे हैं तो उसका टाइप क्या होता है, आप उसका टाइप होता है टपल, राइट। अगर हम चाहते हैं उन वैल्यूज को इंडिविजुअल एक्सेस करना तो जितनी वैल्यूज हम पास ऑन कर रहे हैं उतनी वैल्यूज हम क्या कर रहे हैं, ए और बी उतनी वेरिएबल्स के अंदर हम रिसीव करेंगे। तो हमने दो वैल्यूज पास ऑन करी थी तो हम दो वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, तो लेंथ की वैल्यू ए को असाइन हो जाएगी और ब्रेड्थ की वैल्यू बी को असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो है अनपैकिंग हो रहा है, आपका जो टपल पैक्ड फॉर्म में था उसको अनपैकिंग हमने करा है। सो आप देखोगे यहाँ पे जो वैल्यू है बस पास ऑन कर रहे हैं 30 40। अब यहाँ पे देखोगे इंडिविजुअल वैल्यूज प्रिंट हुई है, टपल के फॉर्म में प्रिंट नहीं हुआ है, राइट। नाउ ये तो हो गया कि हम जब मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं तो किस फॉर्म में रिटर्न होता है, टपल के फॉर्म में रिटर्न होता है, राइट। सो अगर जो है हम, ये तो हमारा, अब थर्ड में हमारा क्या था, हमने एक डिस्कस किया कि हम रिटर्न स्टेटमेंट जब यूज कर रहे हैं तो वैल्यू जो स्टोर हो रही है वो किस में हो रही है, वेरिएबल में हो रही है। सेकंड वे हमने डिस्कस किया कि हम डायरेक्ट जो है वैल्यू को कहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, इन द प्रिंट स्टेटमेंट की वैल्यू हमारी डायरेक्ट प्रिंट हो, राइट। उसके बाद हमारा थर्ड वे क्या है, अगर हमें किसी एक्सप्रेशन में यूज करना है, सपोज मुझे जो है फंक्शन डेफिनेशन के बाहर बाहर ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्वाइस मुझे फंक्शन डेफिनेशन के बाहर ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको अगर एक्सप्रेशन में यूज करूंगी तो किस तरह से होगा, 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे हमारी जो है, हम यहाँ पे एरिया को रिटर्न कर रहे हैं। एरिया जो है हमारा फंक्शन कॉल की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और एरिया की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो जब हम इसको प्रिंट ए करेंगे तो जो भी हमारी वैल्यू है एरिया का उसका ट्वाइस हो जाएगा। सो दैट फॉर्म्स योर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमारा कुछ भी हो सकता है,
30, then 40. सो आप देखोगे यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एरिया आपका डिस्प्ले हो गया। सो आई होप कि आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। हमने जो है we have discussed four ways of defining a user defined function. One is function with no argument and no return type, function with argument but no return value. इस वीडियो के अंदर हमने नेक्स्ट टू डिस्कस किया है, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू एंड फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। सो आई होप आपको ये सारे तरीके समझ में आ गए होंगे। इसके अंदर हमने क्या करा था कि जहाँ पे हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर भी ले रहे हैं, वैल्यू रिटर्न भी कर रहे हैं, तो हमारे पास तीन तरीके हैं। आइदर यूजिंग अ फंक्शन कॉल अलोंग विद द वेरिएबल, सो जब भी आपकी वैल्यू रिटर्न होगी तो किसको असाइन होगी, वेरिएबल को असाइन होगी। अनदर वे इज बाय यूजिंग अ फंक्शन कॉल विद इन द प्रिंट स्टेटमेंट, तो वैल्यू जो रिटर्न होगी वो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही रिटर्न होगी और डायरेक्टली स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। Third method which we have discussed is your by using a function call in an expression, तो जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो आपके एक्सप्रेशन के अंदर डायरेक्टली रिटर्न होगी एंड देन वी सॉल्व द एक्सप्रेशन एंड देन वी proceeded further. So we have discussed all the three ways of returning the value, right? And we have also discussed कि अगर हमें function return करना है but without any argument, तो हम उसको कैसे return कर सकते हैं। और आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि अगर हम कोई भी स्टेटमेंट जो है आपका रिटर्न स्टेटमेंट के बाद हम लिखते हैं, लाइक सपोज मैं यहाँ पे जो है प्रिंट जो है, रादर देन राइटिंग ओवर हियर मैं इसको रिटर्न स्टेटमेंट के बाद लिख रही हूँ, तो इस केस में ये लाइन कभी भी प्रिंट नहीं होगी, राइट? क्योंकि आपका रिटर्न स्टेटमेंट जैसे ही एनकाउंटर होगा आपका कर्सर जो है वापस कहाँ चला जाएगा, फंक्शन कॉल पे चला जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका कभी भी रीचेबल नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट आपका कभी भी प्रिंट नहीं होगा। सो आपको ये चीज ध्यान में रखना है, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स होती है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी आफ्टर एग्जीक्यूशन ये लिखा 40 लिखा, तो आपका 2400 तो प्रिंट हुआ विच इज योर ट्वाइस ऑफ द एरिया, बट एरिया प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एरिया हमने कहाँ पे प्रिंट किया था, रिटर्न स्टेटमेंट के बाहर, विच इज नॉट reachable, right? So the return statement ends a function execution if it is in the middle of the function, तो function definition आपका वही end हो जाएगा जैसे ही return statement encounter होगा। anything returned below the return statement will become unreachable code, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि 1 मार्कर के क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है। सो आई होप ये किस तरह से फंक्शन डिफाइन करना है आपको समझ में आ गया होगा। And if you have any doubt in the definition of function, please do comment in the comment section. I will definitely revert you back. And if you are liking my video, then please kindly subscribe my channel. Click on the bell icon. Do comment in the comment section if you are liking the video. Thank you so much.